Hopefully. We'll wait for a minute. Good afternoon, sir. Good afternoon. How was your Diwali? Nice. We'll wait for 1 minute, okay? And then we'll start. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so I think all of you would have seen that the pre-board schedule has come out, right? So we have to rapidly prepare towards the pre-board. Now, what I wanted to discuss before we start today's class is that let's discuss on a few. We have about 2 weeks, a day less than 2 weeks, right, before the pre-board starts. So let's agree on certain topics that will be beneficial to most. Obviously, we can't cater to needs of each and every Good one. afternoon, sir. Good afternoon. But let's go around the class and figure out certain topics, okay, in maths and science both, which we should revise over the next 2 weeks, right? We will have, I think, 4 periods for science, and we'll have about 8 more periods for maths, right? No, 6 more periods for maths. So let's discuss on certain topics uh, or certain, it could be the entire chapter or even some subsection of a chapter. Just help me where you, yeah, please tell me and switch on your videos in the meantime. Let's not spend time on that ritual anymore. हाँ बताइए कि कौन सा मैथ्स का पहला डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स में हमारे पास एटलीस्ट 6 मोर क्लासेस आएंगी तो क्या क्या हमको जो है कवर करना है उसमें कौन से एरियाज यू वांट मी टू फोकस ऑन Sir, trigonometry and triangle. ट्रिगोनोमेट्री ओके ट्रायंगल्स triangles then Sir, circle. circle you want to do okay circle
What more? सर फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं. Okay. See you. Word. सर हाँ. क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम कट चुकी है ना, रिमूव है ना वो? Word problems HCF LCM में. No. No. In quadratic, I was asking about quadratic equation, chapter 4. हाँ. Chapter 4 quadratic equations may actually they have said real life problems are out of syllabus, right? So most likely that would be the word problems that will be out, right? But still being able to do a few is going to be helpful, right? क्योंकि इतना clear definition नहीं है quadratic में कि क्या चीज out है, right? तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स किए होने चाहिए, लेकिन व्हाट दे हैव सेड इज दैट द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर आउट. ओके, सो व्हाट एल्स we could possibly cover one or two more topics. Let's have a longer list. We may not be able to cover everything, so at least one class if we go with each thing, right? So we have covered 3 to 4 classes already. So what else you find difficult or you want to revise or do more questions? Any other area? Okay. So we'll make this as the list and do this in the next 6 classes. Okay. Now science also, let's quickly discuss that because I don't want to spend the science class doing that. We have only 4 classes, so we can't cover a lot. So tell me the topics you want to get covered. Maybe we can cover 2 to 3 topics. Huh? I think Magnetism. light chapter. Magnetism. So वो तो हो गया. मैग्नेटिज्म का हमने रिवीजन एक कर लिया है एक्चुअली, लेकिन लाइट करा दीजिए. लाइट. ओके, it could be a chemistry or a bio topic also. That's not an issue. If there is a chemistry or a bio topic that you need revision on, you could tell me that also. Sir, in chemistry, carbon and its compound. Okay, so ये 3 topics मतलब जितना हो पाएगा. See, we have only 4 classes, but let's aim कि इनमें से जितना कवर कर पाए. Magnetism we have done, so I will put it towards the end. एक कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? लाइट एंड कार्बन पे फोकस करेंगे, ठीक है? और मैथ्स में इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड कीप फॉर मी. Good. Okay, let's get started. Today we will do quadratic. Tomorrow I will bring trigonometry questions. Okay. Okay, quick revision एक कर लेते हैं. Quadratic polynomials करने के बाद बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता है. काफी कुछ is already covered. Like we already know कि quadratic का फॉर्म होता है ax square plus bx plus c is equal to 0. ये quadratic equation है. इसमें important क्या है कि a is not equal to 0, right? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये linear equation बन जाएगी. Okay, तो इससे related questions अगर आते हैं कि is it a quadratic equation, we have to see that there should be a non-zero coefficient after complete simplification of the equation. Okay, methods for solving. Factorization है जो हमें बहुत अच्छी तरह से आता ही है. Splitting the middle term भी बोलते हैं इसको.
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और फिर वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी, ओके। और उसी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलता है, ये इसी के थ्रू आता है, और ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, which is minus b plus minus under root b square minus 4ac by whole under root, whole upon 2a, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें प्लस माइनस साइन से हमें दो वैल्यूज मिल जाते हैं, और ये जो रूट के नीचे जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको डी या फिर डेल्टा दोनों ही सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस we can find the nature of the roots. If this is 0, the roots are real and equal, okay. If this is greater than 0, then the roots are real and distinct, but if this is less than 0, the roots are not real, okay. So जब roots real नहीं होते हैं, वो एक कंडीशन है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि रूट्स रियल नहीं है, वो वैल्यू क्या आती है उस पे अभी हमें फोकस नहीं करना है इन 10th स्टैंडर्ड, ओके। तो इतना ही है इस चैप्टर में। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर बिकॉज वी ऑलरेडी नो द फैक्टराइजेशन मेथड वेरी वेल, ओके। So let's do some questions. Which of the following is not a quadratic equation? देखिए, पहले वाली हमें एकदम दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, राइट, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी और इधर कोई नहीं आ रही है, तो कैंसिल तो हो नहीं सकता। वी डोंट हैव टू सॉल्व द एंटायर थिंग, वी नो इट इज क्वाड्रेटिक, ओके। और हमें नॉट वाला आंसर ढूंढना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, और यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ पे 9x स्क्वायर की टर्म आएगी, राइट। तो ये कैंसिल तो नहीं हो पाएंगी टर्म्स, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही रहेगी। और कोई भी क्यूब वाली टर्म आती हमें दिखाई नहीं दे रही है, राइट। हमें बस यही देखना है कि स्क्वायर से ऊपर कोई ना हो और स्क्वायर की टर्म बची हो, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। ये हम बिना सॉल्व करे देख रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर आएगा, जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कहीं से एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये लीनियर रह जाएगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, केवल स्क्वायर टर्म्स बचेंगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी, ओके। So this is a quick way of doing this problem. Otherwise, you can expand and solve. Okay, so the answer is C here. Okay, let's do this one. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सा कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रिलेटेड है। तो व्हाट विल बी द आंसर? सर बट कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो रिमूव हो गया है ना? Completing the square method is removed. I don't remember that. एक second, give me 1 minute, I'll check that part. Did वो दिया हुआ तो नहीं है, केवल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिमूव हुआ है, टॉपिक्स रिमूव्ड में। सर भूपेंद्र सर ने भी कहा था। एक सेकंड, गिव मी अ मिनट, आई एम रेफरिंग टू व्हाट इज ऑन द साइट, ओके, गिव मी 1 more minute. Yes, sir. Completing square method deleted है.
रिमूव्ड है? सर वो डिलीटेड सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर से ही डिलीट हो गया था। अच्छा अच्छा, ओहो, that I am not aware of then. I'm sorry about that then. Okay, just give me 1 minute. मैं रिवाइज सिलेबस में एक बार चेक कर लेता हूँ to be very sure. Yes, it is not there. I'm sorry. So we will skip this question, okay? We'll skip this question. We'll not spend time on this. So ये again the same type of question, ठीक है? So we will not do this question, but you have understood how to do, right? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें ये केवल ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट है या नहीं या कांस्टेंट टर्म है या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। Okay, all of these are same questions. Now let's do this. Which of the following equations has 2 as a root? How will we do this? सर x की वैल्यू 2 रख देंगे। हाँ, अगर वो satisfy हो जाएगा तो as simple as that. Okay, we don't have to do this question. It's so simple. Okay, similarly, sometimes the root is given and we have to find the value of some other constant in the equation, and we can do it. We have done enough of these questions in the previous chapters also, right? So I will not do this also. Okay. So sum of its roots is 3. Again, we have done enough of these questions in the polynomial chapter. Okay. If anybody has doubts, you can ask me, right? I'm not wanting to spend time on things that we have done in a lot of cases, okay? Again, a type of question we have done. This is out of syllabus now. Okay, a quadratic equation has, this equation has 2 distinct real roots, etc., etc. So क्या use करेंगे हम इसमें? No real root. हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे खाली, राइट? पूरा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? सो बी स्क्वायर इज 5 माइनस 4ac इज 8. सो क्या आंसर आ गया हमारा? नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का क्या मतलब है? सर नो रियल रूट्स। No real वेरी root. गुड, हाँ, very very simple, right? So I'll skip similar questions. I think all of you can do it. Now let's do this question, but okay. How will we do this question? सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। हाँ, very good. So this is not a quadratic equation, लेकिन हमसे question ये आ गया है, तो कैसे करेंगे हम इसको? ये बिल्कुल आ सकता है No real question. roots. नहीं, आप ऐसा मतलब आपने, although that is actually the answer, but you solved it or you just said it? Sir, by solving. Okay, okay, great. तो कैसे किया? How did you do it? सर वो तो 1 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी तो उससे सिर्फ एक ही रूट। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर रियल रूट हो जाएगा ना। और अगर 1 डिग्री की भी इक्वेशन, देखिए कहीं पे भी वर्ड क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है ये क्वाड्रेटिक है, राइट? क्वेश्चन इज नॉट सेइंग इट इज अ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पे हमें नहीं अटकना है। क्वेश्चन ये है कि इसके रूट्स रियल है या नहीं है,
एग्जाम में ये तो कहा नहीं जाएगा ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे सॉल्व करें। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये किस ऑर्डर की इक्वेशन है? सर लीनियर। नहीं नहीं, लीनियर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और इसका पूरा स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर। सर वो 2s² हो जाएगा, तो सर क्वाड्रेटिक तो है ये। नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है। देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट? डिग्री तो 4 हो गई। हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक की तो डिग्री 2 होती है। ओके, देखिए इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका समझते हैं कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इमीडिएटली। क्या है इसका फैक्टराइजेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, राइट? आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ गया? ये देखिए, इसको एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हमने लगा दिया है। गॉट इट? यस सर। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, राइट? अब इसका मतलब क्या होता है कि दिस मल्टीप्लाइड ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब या ये होता है या तो a 0 है या फिर b 0 है या फिर दोनों 0 है, राइट? यही मतलब होता है ना, a इंटू बी इज 0। तो इसका मतलब हमें इसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? एंड होता है उसमें। ये क्या है? और है। यानी या तो ये 0 है या तो ये इक्वेशन सच है या ये सच है। ये दोनों एक साथ सच हो ये जरूरी नहीं है। तो इसको साइमल्टेनियस नहीं है, मैं लिख देता हूं नॉट साइमल्टेनियस। ओके, तो वो जो आप इक्वेशन जमा घटा कर देते हैं वो यहां नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है? साइमल्टेनियस नहीं है ये, लेकिन दो इक्वेशंस हैं जो दोनों सच हो सकती हैं। अब इसके रूट्स कैसे हैं बताइए? What are the roots of this? What type of roots are there? देखिए डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है? -1, -1 स्क्वायर इज 1, -4 इंटू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट इज -3। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए, -3 आएगा। डेल्टा यहां पे भी और यहां पे भी। यानी किस तरह के रूट्स हैं इसके? सर लेस देन 0। हाँ, तो किस तरह के रूट्स हैं? नो रियल रूट्स। हाँ, नो रियल रूट्स। इसके नो रियल रूट्स हैं और इसके भी नो रियल रूट्स हैं। तो इसके दो नॉन रियल रूट्स हैं, इसके दो नॉन रियल रूट्स हैं। चारों के चारों रूट्स जो हैं वो नॉन रियल हैं। आंसर हमारा सी है। ठीक है, आंसर कुछ भी आ सकता था, 4 रियल रूट्स भी आ सकता था, वो तो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन को कैसे करना है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। क्वेश्चन को क्या करना है कि वी स्प्लिट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनके इंडिविजुअली हम रूट्स का नेचर निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अगर एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन टाइप से ये आ सकता है आपको। ओके, कॉमन नहीं है लेकिन आ सकता है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो डज देयर इज ए इक्वेशन गिवन हैव अ रियल रूट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि x+1 कॉमन है या कुछ है, कुछ ऐसा तो है नहीं।
तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो पूरा लॉन्ग मेथड से ही होगा ये क्वेश्चन, और वैसे कोई कठिनाई नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ। If in a quadratic equation the coefficient of x is 0, then the quadratic equation has no real roots. ये सच है या झूठ है? false. यस, वाई? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन माइनस 4ac क्या कभी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर a और c का साइन ऑपोजिट हो तो, राइट? तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है और इस वजह से इसके रियल रूट्स हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? State whether the following quadratic equations have two distinct real roots. I will not do this question. Straightforward question है, डिस्क्रिमिनेंट से करना है। ठीक है, लेकिन कई बार आप ये देखेंगे कि you might have coefficients like this also. ओके, तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी हो जाता है, राइट? क्योंकि हम कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे। ठीक है, तो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं इसमें। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट, ट्रू फॉल्स? false. False. Every quadratic equation has at least one real root. False. 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 हाँ. Every quadratic equation has at least two roots. Yes, sir. True. Sir, true होगा। True होगा? सर Yes, ऐसा भी sir. तो हो सकता है कि कोई रियल रूट्स हो ही ना। Yes. So, लेकिन हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं उस कैटेगरी में डालूंगा कि जिसको हम कहते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसमें डाउट हो सकता है। ठीक है, द वर्डिंग एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इट does not have at least two roots, it has exactly two roots, right? लेकिन कंफ्यूजन ये हो सकता है कि वो रूट्स हो सकता है रियल ना हो या सेम हो, right? So this question is not a very good question, okay? Not a very good question. Okay, but my sense is if such a question comes, the answer would actually be a no, because this has far too many issues with this statement. Okay, but why it should be no can be debatable. Okay, every quadratic equation has at most two roots. True. This is easy to say it is true, right? Because even if he meant real roots, it is true even then, right? So this answer we can without any doubt say true. If the coefficient of x square and the constant term of the quadratic equation have opposite sign, then the quadratic equation has real roots. ठीक है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, True. राइट? ये तो हमेशा Because D पॉजिटिव, will be greater than. और ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, यानी कि AC विल बी नेगेटिव और यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस ये जो पूरा टर्म है इतना ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट? एंड हेंस दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा।
if the coefficient of x square and the constant term have the same sign, and if the coefficient of x term is 0, then the quadratic equation has no real roots. ठीक है, तो b स्क्वायर तो 0 हो गया, -4ac, और ये दोनों एक ही साइन के हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, -4ac नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नो रियल रूट्स होगा, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, हाँ, तो इस ऑन द सेम लाइंस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स। अगर कोएफिशिएंट इंटीग्रल है तो क्या रूट्स इंटीग्रल होने चाहिए? Anybody who has doubt on understanding what is the meaning of integral? यस सर, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे है इंटीजर। ठीक है, वो बस सुनने में अलग लगता है, इंटीग्रल मतलब कंप्लीट, और यहाँ पे इसका मतलब, लेकिन इस सेंटेंस में इसका मतलब है इंटीजर। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, राइट? देखिए, जो एक सिंपल सी बात याद रखिए कि ए, बी और सी की क्या नेचर है, वो इंटीग्रल है, रियल है, क्या है? मतलब रियल तो होते ही हैं, लेकिन इंटीग्रल है, रैशनल है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों इस पर, नेचर ऑफ रूट्स पर। नेचर ऑफ रूट पर केवल किस चीज का फर्क पड़ता है कि बी स्क्वायर -4ac कैसा है, राइट? तो अब वो कह रहे हैं कि इंटीग्रल हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोएफिशिएंट इंटीग्रल हो भी तो रूट्स जो है नॉन इंटीग्रल हो सकते हैं, और हम ऐसी आराम से कोई भी इक्वेशन हम ऐसी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational, but both of its roots are irrational? रूट्स इरेशनल हैं, लेकिन कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रेशनल हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस कम हैं, ओके? इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। सब पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा? आप कॉन्जुगेट्स ले लीजिए रूट्स, राइट? तो जैसे आपने रूट ले, कॉन्जुगेट्स ले लीजिए कि प्लस हो गया 2 -√3 हो गया, राइट? इनका जो सम है वो भी रैशनल है, इनका प्रोडक्ट भी रैशनल है ना? और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स और सम ही तो हैं उनके। तो अगर ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रैशनल हो जाएंगे। गॉट इट? We can use conjugates to do such a problem. Conjugates का मतलब पता है आपको? Maybe I am not sure if we used that word before. यहाँ पे मेरा मतलब conjugate से क्या है? Rationalizing factor. Okay? हम उसका rationalizing factors अगर हैं एक दूसरे के ये, तो ये true हो जाएगा। Does there exist a quadratic equation whose coefficients are all distinct irrationals, but both the roots are rational? Distinct irrational, right? See,
it's again, it's a tricky question as such. अगर आप ये बनाना चाहेंगे मुश्किल लगेगा, लेकिन ना इसको करना बहुत आसान है आपके लिए. मान लीजिए ये आपको इक्वेशन ये एक इक्वेशन पता है सभी को, राइट? इसके रियल रूट्स हैं और रैशनल रूट्स भी हैं, राइट? रैशनल रूट्स हैं इसके. क्या है? -1 है दोनों रूट्स, राइट? तो अब इस इक्वेशन को आप किसी एक इरेशनल नंबर, नहीं इसमें दोनों 1 है. लेट्स नॉट टेक दिस, लेट्स टेक you know 6 and 9. Okay, now all of these are distinct. Let's multiply it by a irrational number. Let's say I multiply it by √2. ये सब डिस्टिंक्ट हो गए, लेकिन रूट्स अभी भी रैशनल ही है, -3 है खाली रूट्स. Okay, so these type of questions help you become more friendly with the quadratic equations. Okay, I'll not do that question. It's ultra simple. Read the question nevertheless. If anybody has doubt, ask me. It is a very, very simple question. If b is equal to 0, and c is less than 0, okay, it is true that the roots of x square plus bx plus c are numerically equal and opposite in sign. True or false? See, this will take the form of x square is equal to -c, right? And c is less than 0, so -c is greater than 0. So x square is equal to a positive number. So x क्या होगा? Plus minus root of positive number. So this is true. Okay. सर इस टाइप की जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके दिखाते हैं फिर कॉन्सेप्चुअल? दोनों तरह से दिखा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे. ये प्रूफ क्वेश्चंस नहीं है, केवल जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस हैं. अगर आप एग्जाम्पल से भी दिखाएंगे तो वो इक्वली वैलिड. ठीक है, कई बार एग्जाम्पल से दिखाना आसान होता है, तो बिल्कुल यू टेक दैट रूट. अगर वर्ड प्रूव यूज किया गया, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू यूज एन एग्जाम्पल. जस्टिफाई में 100% यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे ज्यादा उसमें कुछ पढ़ाने को नहीं है. सो आई वुड नॉट डू दिस हियर. ठीक है, अगेन दिस इज नॉट नीडेड. This is out of. Okay, now these are the word problems. Okay, so these are out of the chapter. I would suggest you do, 1 or 2 word problems. Just do 1 or 2 from your book itself, so that बिल्कुल blank नहीं होना चाहिए हमें उस topic पे, लेकिन don't spend more time on it. Okay, this has been explicitly said that situational problems are out, which essentially mean word problems. Okay, तो ये हमें अभी तो करने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट लेफ्ट विद मच टाइम, ओनली अ फ्यू सेकेंड्स. तो आप जो है 1-2 कर लेना अपनी बुक से. डोंट वरी अबाउट इट मच, एंड वी विल कैरी ऑन विद द अदर फ्यू टॉपिक्स वी हैव सिलेक्टेड टुडे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ठीक है.
I'll bring more of the board questions which have appeared that will help you with the pre-board more. ठीक है? Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Bye.